Honorable members, a very good morning to all of you. I welcome you all to the 56th National Youth Parliament 2023, and I hope that this session will be fruitful. We begin today's session with oath and affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. श्री राघवेंद्र प्रसाद मीना जो राजस्थान के जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? I, Raghavendra Prasad, having been elected as a member of lower house of the Youth Parliament, do hereby swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of country, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. Ms. Namita Chatterjee, who stands elected from Durgapur constituency of West Bengal, will now take an oath or an affirmation. Madam, do you want to take an oath or an affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Bangla, please. আমি শ্রীমতী নমিতা চ্যাটার্জি যুব সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছি। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি সত্য, বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং অখণ্ডতা বজায় রাখিব। আমি আমার দেশে যে দায়িত্বে প্রবেশ করিতে যাইতেছি তাহা আমি বিশ্বাসভাবে নির্বাহ করিব। Honorable members, with great sorrow and regret, I inform this House about the sad demise of the former Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe, who was shot dead in the southern city of Nara in Japan on 8th of July 2022. He was a great statesman and the chief architect of Japan's free and open Indo-Pacific policy. His death has created a huge void. Indeed, it's a big loss for the entire world. श्रीमती अध्यक्ष महोदय जी, मैं श्री शिंजो आबे जी के निधन पर
हृदय की अपार गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि उनका और मेरा परिचय काफी पुराने समय से रहा है। वे स्वभाव से बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे और मानवीय वेदनाएं उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाती थी। अध्यक्ष महोदय, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वे जापान के प्रमुख नेताओं में सबसे पहले गिने आते थे और तो और वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्हें लगातार 2 बार जापान का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सुप्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने साल 2018 में उन्हें दुनिया का 38वां सबसे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया। वे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे पड़ोसी खतरों को ध्यान में रखते हुए क्वाड जैसे उपक्रम की परिकल्पना की और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्वयं इस बात का सही से संज्ञान भी कराया और तभी क्वाड आज संभव हो पाया। आर्थिक और वैश्विक मामलों में उनकी समझ और कुशल नीति ने हमेशा मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी और तो और वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया और जापान जैसे देशों की आक्रामक नीतियों को समझते हुए जापान के सैन्य बल को दोबारा खड़े बनाने की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश वे आज दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आज का वर्तमान और भविष्य दोनों ही उन्हें एक भावी और दूरदर्शी नेता के तौर पर याद करते हैं। Honorable Speaker Madam, PM Shinzo was a towering global statesman, an outstanding leader, and a remarkable administrator. He spearheaded Abenomics policies, a comprehensive policy package aimed at making Japan strong by reviving the economy from the doldrums of deflation. While maintaining fiscal discipline, internationally, he has been credited with holding Trans-Pacific Partnership, a massive trade agreement between 11 countries. His achievements are the torchbearers for the people of his country, especially the young generation. We all are shocked at the tragic assassination of a friend. I extend my heartfelt condolence to the bereaved family. Thank you. The House may stand in silence for a while to express the deep sorrow. Om Shanti Shanti Shanti. Secretary General, may please convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे आप? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से पूरे सदन से अपने बीच 2 नए साथी मंत्रियों का परिचय कराने में बेहद हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। हमारे बीच वे 2 नए साथी मंत्री हैं, श्रीमती शाहिदा फारूकी रेल मंत्री के तौर पे और श्री अभिषेक नेगी शिक्षा मंत्री के तौर पे। As you all know, that motion of thanks was proposed by Ms. Shubhra Mehta and seconded by Mr. Shiva Mohanty. Honorable Prime Minister will render her reply to the motion of thanks to the presidential address at the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha. Honorable Speaker Madam, I will reply on the motion of thanks to the presidential address. Honorable President has discussed in detail regarding aspirational India. I am also grateful to all the members of the House who have given their valuable views on this address. अध्यक्ष महोदय, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर पूरी तत्परता से बढ़ रहा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दुनिया नई व्यवस्थाओं को बड़ी तेजी से अपना रही है। मैं सोचता हूँ कि हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। भारत एक लीडर की भूमिका कर रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में यह समय सबसे सुनहरा है। यदि हम आज
के लोग अपने सामर्थ्य से और शक्ति से इस देश को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा चुके होंगे। मेरे साथियों, मैंने जो बात कही ये कोई दिव्य स्वप्न नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना होगा। हमें आत्ममंथन के साथ आत्मचिंतन भी करना होगा। हमें समझना होगा कि प्रगति की राह पर बढ़ने का सपना लेकर हमने जो शुरुआत की थी आखिर कहां अटक गए, क्या गलती कर गए। अध्यक्ष महोदय, आज इस अवसर पर मुझे एक कविता याद आ रही है, तो मुझे बहुत प्रिय है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। जरूर जरूर सर। हो गए हैं सपने सब साकार, कैसे मान ले, टल गया सिर से व्यथा का भार, कैसे मान ले, आ गई स्वतंत्रता, चेतना आ नहीं पाई, प्रगति के ही नाम श्रद्धा और श्रम को दिन जाए। इस भयंकर मौत को पतवार कैसे मान ले हम, टल गया जिससे व्यथा का भार, कैसे मान ले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमने जो मेहनत करना और अपने जीवन मूल्यों को सम्मान देना छोड़ दिया है, यही कारण है कि हम आज भी पीछे रह गए। हालांकि बीते कुछ वर्षों में हमने कई मूलभूत व्यवस्थाओं में मजबूती लाने का पूरा प्रयास किया और गरीब को ऊपर लाने के लिए कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वेतन मनरेगा और उज्ज्वला योजना को सफलतापूर्वक लागू करके दिखाया। सच में जब एक गरीब की आंखों में खुशियों की रोशनी होती है तो पूरे देश की खुशियों को प्राप्त होती है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया अभी भी कोविड से जूझ रही है। मानवता ने पिछले 100 वर्षों में ऐसी कोई चुनौती नहीं देखी और ये बेहद निंदा का विषय है कि हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसी गंभीर महामारी को भी दलगत राजनीति के उपयोग में लिया है। लेकिन इसी दौरान हमारे देशवासियों का अपनी स्वदेशी वैक्सीन के प्रति जो अटूट विश्वास देखा गया है, वो निसंदेह सराहनीय है। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 80,000 से ज्यादा जन कल्याण केंद्र बिल्कुल निःशुल्क काम कर रहे हैं और तो और वे अन्य प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष 2022 की EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और पेरोल के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 1,20,00,000 लोगों ने EPFO में अपना नाम दर्ज किया। ध्यान दीजिए, ये सभी की सभी औपचारिक सेवाएं हैं, यानी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के प्रति भी हम पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया भी इसी दिशा में हमारे बाइक जो बोली है ना। अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी चीजों से बड़ी तकलीफ है, क्योंकि इसका अर्थ है कमीशन के रास्ते बंद, तिजोरियां भरने के रास्ते बंद और घुसखोरी के रास्ते बंद। Please maintain silence. प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए, कृपया बैठ जाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी मानता हूं कि वास्तव में इन लोगों ने जो किया है और जो कर रहे हैं वो है इस देश के उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, इस देश के युवाओं का अपमान और इस देश की इनोवेटर क्षमता का अपमान। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष में बैठे अपने साथियों से यही कहना चाहता हूं कि आप विचार कीजिए, आप मंथन कीजिए कि कहीं आप ऐसे महत्वपूर्ण समय को हमारी आलोचना करने में बर्बाद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा इस बात को, मेरी और मेरे दल की आलोचना करने के मौके आपको 1000 मिलेंगे। तो वक्त की जरूरत को समझिए। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ में चलकर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः विपक्ष में बैठे
inflation. Honorable Speaker, Madam, with the Finance Minister, we pleased to state the latest state of inflation and the wholesale price index of India and B, the reasons behind it. Honorable Finance Minister, respected Speaker, Madam, for A, I would like to say that Indian economy is gripped by unprecedented inflation. However, the annual inflation rate edged up to 7.01% in June 2023 from 7.04% in the previous month. It remained above the RBI target range of 2% to 6% for the sixth straight month. Respected Madam, if we take year 2011 to 12, the year with 100 points, where present the inflation rate is 50.38% and wholesale price index is 152.2. For B, it is stated that the current spike in inflation is the result of steep rise in crude oil prices. Recently, the crude oil prices has risen from $83.56 per gallon from $55.17 per gallon across the board. This has increased the import cost of some of the essential commodities every year. Madam, following Russia-Ukraine war, there has been disruption in the global supply chain, which triggered Indonesia to change its export policies and had led to lower power imports. Moreover, how can we forget the role of COVID-19 in increasing problems in everyone's life? And also, the high fuel prices have had spillover effect on transportation and every commodity expenses. Thank you. Supplementary question by Ms. Onam Saxena. Speaker, Madam, with the Finance Minister, we are pleased to state the initiatives the present government is planning to take to contain this issue. आदरणीय वित्त मंत्री, we admit that the current geopolitical situation and soaring prices may slow down the growth. Ironically, this is happening at a time when the world's economy is striving to emerge from the slump caused by coronavirus pandemic. Respected Madam, I would like to say that as a part of anti-inflationary measure for the first time since 2018, the Reserve Bank of India has raised the repo rate by 4 basis points. This is done to control and monitor money flow into the banking system. अध्यक्ष महोदय, बढ़ी हुई रेपो रेट से जिन लोगों ने बैंकों से कर्जा ले रखा है, उनकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। यह तो उपभोक्ता की जेब पर भारी प्रहार होगा। कृपया शांत रहे, सदन की मर्यादा बनाए रखें। Honorable Speaker, Madam, I would like to assure that we are trying our level best. We are looking at agricultural sector as an enormous opportunity. On the priority basis, we are focusing on boosting India's agricultural and making policies to increase farmers' income to offset potential hunger and counter inflation. We hope that government policies like Gati Shakti and production-linked incentive schemes will drive investment. We are expanding our petroleum basket across West Asia, Africa, North and South America. However, RBI will continue to calibrate its policies with the goal of preserving and fostering macroeconomic stability. Thank you. अगला प्रश्न संख्या 102 मिस आफरीन आलम। स्पीकर साहिबा, क्या वजीर माहौलियात मुझे बताएंगे कि दिल्ली में आलूदगी की संगीन सूरत हाल से बचने के लिए क्या इक़दाम किए गए और मौजूदा हालात के पेश नजर क्या हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पॉलिसी के नाफिज करने पर संजीदगी से गौर कर रही है? शुक्रिया स्पीकर साहिबा। Honorable Environment Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि दिल्ली का पर्यावरण अत्यधिक दूषित हो चुका है। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप के कारण विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश को समय से पूर्व ही घोषित करना पड़ा। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े शहर जैसे कि मुंबई, कोलकाता, नागपुर, सिकंदराबाद आदि में भी एक पद से
नजर रखने के लिए 132 शहरों में निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। वित्त आयोग ने राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण को कम करने के लिए 4,400 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। दिल्ली में जहां प्रदूषण की स्थिति सबसे भयावह है, वहां वाहनों की खपत को कम करने के लिए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया है। एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। बार-बार प्रदूषण चेकिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। महोदया जी, इस विषय पर और भी चिंतन मनन चल रहा है। मंत्री जी, चिंतन मनन में तो हमारी सरकार पहले से ही माहिर है और ईब तक हम लोगों ने आत्ममंथन की जब पढ़ाई हमसे विनती है, कृपया करके कोई नई बात करो। ये घिसी-पिटी बातें करके संसद में दिग्भ्रमित मत ना करो। Silence, please. Let the minister explain. Please sit down. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार एक अनूठी पहल करने जा रही है। इसके तहत सड़कों पर दौड़ते वाहनों के उत्सर्जन का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग डिवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हुआ। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इससे पहले वाहनों द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। इस सिस्टम के जरिए वाहन चालकों को एसएमएस से अलर्ट भी भेजे जा सकेंगे। महोदया जी, आरएसडी एक मोबाइल यूनिट होगी जो विभिन्न शहरों में अलग-अलग जगह लगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू किया जाएगा और सफलता मिलने पर और भी शहरों में लागू होगा। Supplementary question by Ms. Namra. Speaker, madam, a sudden increase in requirement of electric vehicles could potentially cause problems to the general public. Dear Environment Minister, would you please like to tell the House that how the surge in demand will be dealt with? Thank you, madam. स्पीकर मैडम, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं और जहां तक बात है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की व्यवस्था की, तो वह कार्य राज्य सरकार का है और उन्हें इस संदर्भ में विशिष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। धन्यवाद। परंतु राज्य सरकार से केंद्र का मुद्दा बता रही है और केंद्र सरकार से राज्य का। यह तो वही बात हुई, दो गार्डन के बीच में बागी बचाना कोई। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 103 मिस्टर अमन प्रजापति। Honorable Speaker, Madam, will the Union Minister of Home States Affairs inform the House about the concept of one nation, one election after observing the above in 4 states elections during the COVID time? Thank you, Madam. Honorable Union Minister of State Home Affairs. Honorable Speaker, Madam, I think everybody in the House is aware of the fact that until 1967, simultaneous elections were the norm in India. However, due to premature dissolution of some legislative assemblies in 1968 and 1969, the cycle got disrupted. However, our government is planning to bring a bill to the House, most probably in the next session. And आप शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो मंत्री अपनी बात कह रहा है उन्हें कहने दें तथा सदन की मर्यादा बनाए रखें। thank you, Madam. And our debate will be mainly around these issues. First, financial cost of conducting election. Second, cost of repeated administrative reason. Third, visible and invisible cost of different political parties. And fourth, campaign and finance cost of different political parties. And nowadays we are getting news that the bill passed in the Lok Sabha, which is the Kashmir reservation, is acting as a boon for the Kashmiri citizen. The community which was discriminated for 17 years in Jammu and Kashmir now getting rights and justice. Is not it a symptom of a good ruling party? Yes, it is. Thank you, madam. Question number 104 Ms. Nandini Jaiswal. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कृपया बताइए भारत में मंकी पॉक्स की वर्तमान स्थिति क्या है और वह उससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है अथवा विचार कर रही है। धन्यवाद महोदय। Honorable Health Minister.
अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना से फैली इस दुनिया के सामने मंकी पॉक्स एक नया खतरा बने खड़ा है। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के आंकड़े ये बताते हैं कि अब तक पूरी दुनिया के 100 देशों में मंकी पॉक्स के 80,000 मामले आ चुके हैं। WHO ने तो इसे पैंडेमिक की घोषित कर दिया है और साथ ही इस पर ग्लोबल एक्शन लेने को भी कहा है। हमारी सरकार ने सचेत रहने की आवश्यकता को समझते हुए ही इसे पहले से ही नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को कह दिया। उपाध्यक्ष महोदय, चिंता हमें भी है क्योंकि यदि हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट होते हैं वो तो हो गए मंत्री जी। लगता है आप बड़ी ही बेखबरी में जी रही हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है, कल ही केरल के कोलम में देश के पहले मरीज की पुष्टि हुई है। और वो मरीज भी बाय चांस पकड़ में आया है। न जाने कितने तो आंख बचा कर निकल गए, थैंक्स टू योर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सदस्यगण कृपया शांत रहिए एवं मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर देते हैं। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अभी यही बताने जा रही हूँ कि देश में पहले मरीज का संज्ञान ले लिया गया है। मरीज यूएई से आया था। प्रारंभिक जांच पर लक्षणों को देखते हुए ही उसे और उसके माता पिता को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में निगरानी के लिए रखा गया है और अधिक परीक्षण के लिए उसके सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भी भेज दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत वह के उत्तर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार इस वायरस को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। हमने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी विदेशी यात्रियों की जांच की जा रही है। मंकी पॉक्स के लक्षणों वाले सभी यात्रियों के सैंपल को भी NIV भेजे जाने के आदेश दिए गए हैं। Because of smallpox vaccine and monkeypox vaccine vaccine, we are also thinking about big vaccination, which is tied as ST14. We are also planning to supplementally upgrade this medication on priority basis to prevent awareness. Correction order, मैं आपके माध्यम से सदन को एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सदन हमारी मॉनिटरिंग टीम दिन रात इस पर काम कर रही है। हम इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं और हम इस महामारी को मिल कर लेंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न संख्या 105 श्रीमती हसीकुलपति। उपाध्यक्ष जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव यह बताना
Minister of Cooperative. माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, कोऑपरेटिव में काम करती महिलाओं को बिना अचल संपत्ति के बंधक रखे। महोदय, इन महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था साथ में की गई है। इस योजना के अंतर्गत वे महिलाएं जो कुटीर व ग्रामीण उद्योग जैसे टोकरी बनाना, सिलाई, कढ़ाई, फुलकारी आदि कार्य करने वाली महिलाओं को 5 लाख तक का कर्ज दिया जा चुका है, जिसमें कि ऋण राशि को 5 वर्ष तक सामान्य ब्याज से 1% कम ब्याज दर पर चुकाने की सुविधा दी गई थी। धन्यवाद महोदय। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। Now it's time for 0 hour. प्रातः 10 बजे से पूर्व कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछने एवं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाही थी। तो अब श्रीमती सोनम सक्सेना अपना प्रस्ताव रख सकती हैं। Sir, accidents may happen anytime. Recently, a bus met with an accident in Maharashtra on 4th July 2023 had claimed life of 26 people. I would like to propose deputation of rescue teams at a distance of 10 km on an average on the highway to facilitate immediate assistance on roads in times of emergency. Thank you, sir. मिस्टर वेंकटेश अय्यर अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। महोदय, पिछले 5 महीनों में सैन फ्रांसिस्को ने भारत के वाणिज्य दूतावासों पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा यह दूसरा हमला है। मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हमारे दूतावासों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? शून्यकाल समाप्त हुआ। Sir, there is a breach of privilege in the House. Yes, please. Honorable sir, there has been a serious breach of privilege by a member of the ruling party. Days before a serious and a confidential issue regarding the proposed strategies by the government for the profound security implications of cyber attacks was finalized, was leaked into media. And now there is a chaotic debate on every channel. Honorable sir, I request to my ruling party friends to get yourself aware about the rules and the regulations so that they will not get embarrassed and unashamed by whom they choose to be their representatives. Thank you, sir. रूपांजलि जी, क्या आप इसकी पूर्व सूचना दी थी? Yes, sir. I have already given notice of it at 10 a.m. this morning. It will be examined and you will come to know about it. Thank you, sir. Now papers to be laid. Minister of Urban Development. महोदय, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखती हूँ। राष्ट्र खनिज विकास निगम हैदराबाद की वर्ष 2021 से 22 की रिपोर्ट सरकार द्वारा पुनरीक्षा व राष्ट्र खनिज विकास निगम हैदराबाद की वर्ष 2022 से 23 की वार्षिक प्रतिवेदन परिचित लेखा और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। धन्यवाद। Minister of Atomic Energy. So, with your permission, I would like to lay down the following. The annual report of Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2022-23, along with audited accounts and the comments of the Controller and the Audit General thereon. Thank you, sir. Honorable members, I have to make an important announcement. On my own behalf and on behalf of the House, I would like to present our warm and hearty welcome to the member of Singapore parliamentary delegates who are on their visit to India as our honored guests. They arrived on 21st July 2023 and are now seated in the special box. We would like to wish them a happy and comfortable stay in our country. महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश पढ़ेंगे। सर, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे अवैध अब्रिजन विधेयक 2022 की एक प्रति तथा एक प्रति संलग्न करके सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है। यह विधेयक राज्यसभा द्वारा दिसंबर 2022 में हुई बैठक में पारित किया गया था। सेक्रेटरी जनरल, सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक और उसकी एक प्रति संलग्न करके सभा पटल पर रखेगी। जी मैडम, रखता हूँ। माननीय श्रम मंत्री विधेयक पुनः स्थापित करेंगे। महोदया, मैं कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण अनुदान अधिनियम
जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहिए, जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहिए। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाती है। महोदया, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करती हूँ। धन्यवाद। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन पटल पर चर्चा के लिए लाया जाएगा। सुश्री रिया बिश्नोई। अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी देश चीन ने पूर्वी लद्दाख के सामने अक्साई चीन के इलाके में LAC के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती कर दी है। इसके अलावा चीनी सेना गन्स, हुडल्स और एयरशिप्स बनाने का काम भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान इसी तकलीफ स्थिति तथा इसके कारण भारत की अस्मिता पर मंडराए खतरे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि इस स्थिति का सामना करने के लिए वह सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें। धन्यवाद। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए चीन को चेतावनी दी। हमने उन्हें बता दिया है कि मौजूदा स्थिति के जारी रहने से दोनों देशों के बीच न केवल माहौल खराब होगा बल्कि आपसी संबंधों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। मई के शुरू में चीनी पक्ष ने गलवान घाटी क्षेत्र में भारत के सामाजिक पारंपरिक गश्त को रोकने की कोशिश की और बाद में इसने पश्चिमी सेक्टर के अन्य क्षेत्रों में भी यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हमने उन्हें अच्छी तरह से बता और समझा दिया कि यह द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। विशेषकर वर्ष 1993 में हुए समझौते के अनुसार दोनों पक्ष LAC से लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी न्यूनतम स्तर पर रखी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि दोनों देशों के बीच में हुए अलग-अलग दौर की वार्ताओं के बाद चीनी सेना पीछे हट गई है और तनाव कुछ कम हो गया, परंतु हम ड्रैगन पर भरोसा नहीं कर सकते और इसीलिए हमारी सेना हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। हमने भी एक बड़ी संख्या में सैनिकों और लड़ाकू विमानों की तैनाती LAC पर कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, हम कहीं पर भी चूक नहीं सकते और समय अनुसार जरूरत को देखते हुए चीन के इस रवैये पर हम कूटनीतिक एवं सैन्य दोनों माध्यमों से अपना विरोध दर्ज कराते रहे और यह स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा कोई भी बदलाव हमें स्वीकार नहीं। मिस मीनाक्षी चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह लग है कि चीन के प्रति भारत की मानसिक प्रणाली विनम्र और नरम है। मुझे लगता है चीन की स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें मौजूदा सैनिक अनुसंधान की जरूरत है। 3,440 किलोमीटर की लंबी LAC में कई पॉइंट ऐसे हैं जहां भारत चीन ने कड़ी टक्कर दे सके हैं। माननीय महोदय, मुझे यह भी लग है कि चीन की जगह हमारे खराब राजनीतिक रिकॉर्ड का ही भारत में भी दोषी ठहराया जा रहा है। विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड पैदल BRI में भाग लेने से इनकार करना चाहिए। दिलचस्प बात तो यह है चीन का मुख्य दुश्मन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी शुरुआती चर्चा में शामिल था। धन्यवाद। मिस्टर मोहम्मद समीर। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व ही UCSRC की ओर से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अनुसार चीन की तो नियत ही खराब है और वो अपनी विस्तारवादी नीति के चलते कुछ भी कर सकता है। मैं समझता हूँ इस चुनौती को देखते हुए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक संसाधन उसके उचित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और तो और सैनिकों की तैनाती भी जमीनी स्थिति को देखते हुए की गई है। साथ ही नवीनीकरण को अपनाते हुए साइबर और इंटेलिजेंस का उपयोग भी बढ़ चढ़कर किया जा रहा है। धन्यवाद। श्रीमती हिमांशी नायडू। Speaker Madam, ongoing development along the
hard is to think on lines of easing tensions with Islamabad and concentrate on countering Beijing. Thank you, ma'am. अरे ये तो भाई बात हुई पर उद्देश्य कुशल बहुत हुई। अरे भाई ये तो आप लोग पर मैनेजमेंट नीतियों का नतीजा है जो आज देश इस विषमता से जूझ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गई थी आपकी दूरदर्शिता जब आप लोगों की अपनी सरकार थी हमारी सरकार में अभी अभी आई है। कृपया शांत रहिए, सदन की मर्यादा बनाए रखिए। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, गिव योर स्टेटमेंट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथियों का मानना है कि हमें चीन के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसके जवाब में मैं यही कहूंगी कि तैयार तो हम हर प्रकार से हैं, परंतु हमारे देश ने कभी भी पहल नहीं की है। वैसे भी उससे लाभ से ज्यादा हानि ही होती है। Honorable Speaker Madam, we understand that simmering tension involves the risk of escalation and that can be devastating given that both sides are established nuclear power. There would also be an economic fallout as China is one of the India's biggest trading partners. LAC का सम्मान और संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का प्रतीक है। हम भारतीय इस संरेखण से भली भांति
देश की पुलिस व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता है। अब सदन में पुलिस फोर्स बिल 2023 पर विचार किया जाएगा। श्रीमती आयुषी काशी। Honorable Speaker Madam, I support this bill as I believe it's a revolution in the making, and I am proud to even associate myself with passing of such a reformative act. It has been a long pending issue in our nation since independence. While voting the bill, I personally felt that our government is on lines in achieving the objectives of reformation in modern times. The provision dealing with the police public participation are indeed a welcome step. Although our law minister had already elaborated on all the main provisions, yet it is more a key to that of providing powers in the hands of a common man to protect himself from the high-handedness of the police. Thank you, ma'am. श्री नकुल कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, 22 सितंबर 2006 प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार के मामले में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें से 7 को पालन करने का आदेश दिया गया था, जिनमें मुख्यतः पुलिस अधिकारियों के कार्यकालों को निर्धारित करने की बात, ताकि उनके सर पर हर समय स्थानांतरण की तलवार ना रखी रहे। नीतिगत कार्यों को भी विभाजित करने को कहा गया था। साथ ही पुलिस कल्याण ब्यूरो के गठन की बात भी कही गई थी, आज तक लागू नहीं किया गया। परंतु इस बात का ध्यान तो आपकी सरकार को रखना चाहिए था ना। उस समय तो आप ही की सरकार थी। यहाँ तो वही बात हुई, आप गुरुजी बैगन खाए तो दूसरों को उपदेश सुनाए। कृपया शांत रहें, नकुल जी को अपनी बात कहने दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आज जब NHRC ने इस केस के रेफरेंस में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का जोर दिया है, तो इन्हें पुलिस रिफॉर्म लेकर के आया है, पर चलिए देर आए दुरुस्त आए। अध्यक्ष महोदय, हालांकि मुझे इस बात पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है कि ये लोग सभी तथ्यों को देख परख कर इस बिल को ला रहे हैं, परंतु मैं इस उम्मीद पर सब कुछ सही होगा इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। मिस्टर अविनाश वाजपेयी। Honorable Speaker Ma'am, police is one of the vital organs of the executive which holds the pivotal role in maintaining law and order in a society. And from that matter, there should not be any type of partiality in the functioning of police department. The legislature that this government has come in position to some of the provisions are in fact contrary to the Constitution of India. Speaker Madam, it seems like that this bill has more in it for the government and then for the common people. So I outrightly reject it. मिस मीनाक्षी चौधरी। माननीय महोदय, मैं भी अविनाश जी की बातों से सही सहमत हूँ। डिजिटलाइजेशन के इस प्रस्तुत विधेयक में बुनियादी खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। तो इन खामियां ने मद्देनजर रखते हुए मैं भी इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। मिस अंशिका तिवारी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। इसके अनुसार पुलिस थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मेडिको लीगल सलाहकार समितियों का गठन किया जाएगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो स्वयं ही अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। ऐसा होगा तो पुलिस वालों का मनोबल भी बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि वे हर चुनौती का डटकर सामना करें और जनता की आवश्यकताएं अपने आप में पूरी हो जाए। धन्यवाद। अंकिता गोस्वामी। सही कह रही हैं आप। अच्छा होगा यदि सुधारों के बाद पुलिस कर्मियों में सामाजिकता, नैतिकता और संवेदनशीलता का विकास होगा, तो जनमानस इसे स्वतः ही स्वीकार करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूँ। मिस अंजलि पाठक। Honorable Speaker Madam, the main features in the bill are Section 102 and Section 105. Section 102 says the chairperson is to be appointed by the government with consultation of Chief Justice of India. On the other hand, Section 105 gives government authority to remove the chairperson. Therefore, this again gives the power to the government. Speaker Madam, opposition rejects any idea or step to make police puppets in the hands of government. मिस गौरी यादव। Honorable Speaker Madam, this bill gives government the power to interfere in police proceeding constitutional way. It is a mockery of democracy. This government has no knowledge of our constitution
legislation is fraud. It is just unacceptable. Mr. Smeet Kaur, महोदय, सरकार का पुलिस रिफॉर्म बिल न्योड़ का कदम निश्चय ही सराहनीय कदम है, पर मैनू भी ऐसा ही लगता है कि सरकार ने सारे पहलुओं पे विचार किए बिना ही जल्दबाजी में फैसला ले लिया है। धन्यवाद महोदय। Honorable Home Minister, would you like to give some more clarification? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को आश्वासन देती हूँ कि हमारी सरकार ने विधेयक को लाने से पहले सभी संबंधित मुख्य दो प्रश्नों पर समुचित विचार विमर्श किया है। इस विधेयक को सदन में लाने से पहले विभिन्न मंचों पर इस विषय में गोष्ठियां करवाई गई। Leader of Opposition, please enlighten the House with the views of your party. Honorable Speaker, Madam. Actually, this bill hides more than it reveals. We, as opposition party, vehemently oppose this bill and demand amendments to some provisions that synchronize this bill with Constitution of India and public interest. Until our demands are met, we won't let this bill to be passed. We feel that government, by enrolling police, wants to form an autocratic setup which will serve their own benefits. अध्यक्ष महोदय, इस बिल का सबसे खतरनाक पूर्वसर्ग अनुभाग धारा 62 है, जो कि ग्रामीणों की रक्षा के लिए ग्राम रक्षा समितियों के गठन की प्रक्रिया बताता है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां पुलिस जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। यदि जनता को अपने हितों की रक्षा स्वयं ही करनी है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस देश में पुलिस की क्या आवश्यकता है? धारा 120 जो कि 6 महीनों के बाद शिकायत दर्ज कराने की अनुमति नहीं देती है, वह अस्थिर है। यह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। सरकार इस बिल के तहत पुलिस को अपने चंगुल में रखना चाहती है। बिल की छाव में छुपा है सवाल। युवा सभा में आएगा सवालों का भूचाल। We won't let this bill to be passed. We will fight against this. We fight against this. Thank you, Madam. Honorable Home Minister, Honorable Speaker, it is indeed a great learning experience to get the vibrant inputs of all the members of this House, both supporters and critics equally. The first question that I would like to clarify is regarding reservation. All the constitutional provisions have already been taken in consideration to reservation in the recruitment of police personnel. Honorable opposition leader has also raised the contention regarding section 120, which denies the filing of complaint after 6 months. Honorable Speaker, Madam, it is my humble request to all the members of this House to strengthen the police force by assigning their assent to this bill. I strongly advocate that House may pass the bill. Thank you. now, clause by clause consideration. The question is that section 102, 105 and 120 stand part of the bill. There is no amendment in section 102 and 105. Ms. Anjali Pathak, are you moving it? No, Madam. In view of reply given by the Home Minister, I am not present for my amendment. Now the question is that section 102, 105 and 120 stand part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Section 102, 105 and 120 stand part of the bill. Now the question is that the bills to consolidate and amend the law relating to the establishment and regulation of powers and duties of the police services are for matters connected there and incidental here to be taken into consideration. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are